اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 اور 102 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے۔ رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ کو یاد ہوگا یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، یہ حرف ندا ہے۔ ایو جو ہے اس کو بولتے ہیں منادا۔ منادا کا ترجمہ انگریزی میں آتا ہے the one who is called۔ ہا تنبیہ کے لیے آتا ہے۔ الذین آمنوا، الذین اس میں موصولہ ہے۔ آمنو جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی سے ہے۔ آمنا، آمنا، آمنو، یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلہ بنتا ہے اس اسم موصولہ کا۔ اس طرح الذین آمنو ایک جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، نامنل سینٹنس بنتا ہے یہ۔ اور یہ ایو کی صفت ہے۔ یا ایو، اے وہ، کون وہ؟ الذین آمنو، جو ایمان لائے ہیں، ان سے سوال ہے، ان سے خطاب ہے۔ لا تسألو، لا تسألو، یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کا ماضی ہے سأل، سأل، سأل اس نے پوچھا، ہی آسکڈ۔ اس کا مضارع بنتا ہے یسألو، یسألو، وہ پوچھتا ہے۔ اگر یسألو کو ہم تسألو بنائیں گے تو مطلب بنتا ہے تو پوچھتا ہے۔ تسألو، تو پوچھتا ہے۔ اسی تسألو کا جمع ہے تسألون، تسألو کا جمع بنتا ہے تسألون، تسألو، تسألو تو پوچھتا ہے، اس کا جمع ہے تسألون،
تم سب پوچھتے ہو، تم سب پوچھتے ہو، تسألون تم سب پوچھتے ہو. اس تسألون کو آگے سے جب لا لگایا جائے تو اس لا کی وجہ سے یہ نون ڈراپ ہو جائے گا. اس طرح بنتا ہے لا تسألو، مت پوچھو، مت پوچھو. مت پوچھو. ڈونٹ آسک. لا تسألو، do not ask. An اشیاء about things. اشیاء شیئن اس کا پلورل ہے اشیاء. گو یہ اشیاء جو ہے یہ اوبجیکٹ ہے اس تسألو کا، مفعول ہے. ان کی وجہ سے یہ جار مجرور بنتا ہے، متعلق فعل بنتا ہے. لا تسألوا عن اشیاء، تم مت پوچھو چیزوں کے متعلق. ان تبد لکم تسوکم، ان تبد لکم یہ جملہ شرطیہ ہے. ان تبد لکم جملہ شرطیہ ہے. تسوکم یہ جواب ہے شرط کا. ان کنڈیشن کے لیے آتا ہے. تبدہ جو ہے، یہ تبدہ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مجہول ہے. مجہول کا معنی ہے پیسو وائس میں ہے، پیسو وائس میں ہے. اصل جو یہ لفظ ہے یہ ابدا ہے. اب دا یبدی، یب دی. ابدا اس نے ظاہر کیا. یبدی وہ ظاہر کرتا ہے. یبدی کو مجہول بنانے کے لیے اس کا مجہول جو آتا ہے وہ تبدا آتا ہے. تبدا، تبدا ظاہر کیا گیا، ظاہر کیا گیا. از ڈسکلوزڈ. ان تبدا اگر ظاہر کیا جائے گا، لکم تمہارے لیے، جو سوالات تم کرتے ہو
अगर उन सवालात के जवाबात जाहिर किए जाएंगे, इन तुबदलकुम, अगर तुम्हारे लिए जाहिर किए जाएंगे, तसुकुम, तो तुम्हें बुरा लगे, तसुकुम, तुमको बुरा लगे। अहादीस में उलमाई किराम ने इस आयत के बारे में एक रिवायत नकल की है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में थे, चेहरा अनवर सुर्ख हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए। एक शख्स ने सवाल किया कि मेरा ठिकाना कहाँ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोज़ख में। दूसरा आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मेरा बाप कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा बाप हुज़ैफा है। ये मंजर देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़ा हो गए। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियन व बिल कुरआन इमामा। और इसके बाद अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग जाहिलियत और शिरक में थे, नए नए मुसलमान हुए। अल्लाह ताला को मालूम है कि हमारे बाप कौन हैं। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। और इस सिलसिले में रब ने ये आयत नाजिल फरमाई, ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसूकुम। ए मुसलमानों, ईमान लाने वालों, गैर ज़रूरी सवालात मत करो, बेज़रूरत सवालात मत करो। ला तसअलू अन अशिया, उन चीज़ों के मुतलिक मत कुरेदो, मत पूछो। इन तुबदलकुम, अगर वो ज़ाहिर की जाएं, तसूकुम, तो तुम्हें बहुत बुरा लगे। ऐसा पहले भी किया है। बनी इसराइल में बहुत से लोगों ने फिर जब उनके सवालातों के जवाबात आ गए तो उन पर नए नए अहकामात नाजिल हुए और उन्हें नागवार गुजरा और अमल करना भी छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम ने कहा कि ज़रा इस पहाड़ से जिंदा ऊँटनी निकाल के ला दो, तभी तो हम आपको पैगंबर मानेंगे। जब रब ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली तो वो फिर मुनकिर हो गए और नित नए सवालात किए। हमें हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तसअलू अन अशिया, चीज़ों के मुतलिक मत पूछो। इन तुबदलकुम, अगर वो तुम पर ज़ाहिर की जाएं, तसूकुम, तो तुम्हें बहुत बुरा लगे।
व इन तसअलू दूसरा शर्तिया जुमला है। व इन तसअलू इन तसअलू फिर शर्तिया जुमला है। अगर तुम पूछो। इन तसआलू तुम पूछो। व इन तसआलू अगर तुम पूछो। अनहा हा रेफर्स टू अशिया उन चीज़ों के मुतलिक। हीन उस वक्त युनज़्ज़लुल कुरआनो युनज़्ज़लुल कुरआनो नज़्ज़ला फ़ेल माज़ी है। नज़्ज़ला उसने उतारा। इसका मुज़ारिया बनता है युनज़्ज़िलु। युनज़्ज़िलु वो उतारता है। मगर आप यहाँ देखते हैं यहाँ युनज़्ज़िलु नहीं है, यहाँ युनज़्ज़लु है। इसका मतलब है ये फ़ेल मुज़ारिया मजहूल है। युनज़्ज़लु का मतलब बनता है उतारा गया। अल कुरआन जो है ये इसका नाइब फ़ाइल है। नाइब फ़ाइल है। युनज़्ज़लुल कुरआनु कुरआन उतारा गया। व इन तसअलू अगर तुम पूछो अनहा उन चीज़ों के मुतलिक हीन युनज़्ज़लुल कुरआनो जिस वक़्त कुरान नाजिल किया जाता है, उतारा जाता है, तुबदलकुम वो चीज़ें ज़ाहिर की जाएंगी। तुबदलकुम ये जवाब शर्त है। तुबदलकुम ज़ाहिर की जाएंगी। ज़ाहिर की जाएंगी लकुम तुम्हारे लिए। अगर कुरान नाजिल होने के वक़्त आप उन चीज़ों के मुतलिक पूछेंगे तो उस वक़्त नाजिल की जाएंगी, यानी कुरान के नुज़ूल के वक़्त उन सवालों के जवाबात भी दिए जाएंगे। आफल्लाहु अन्हा आफा फ़ेल माज़ी है। अल्लाह इसका फ़ाइल है। आफल्लाहु अन्हा हा रेफर्स टू अशिया अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया जो पहले पहले हुआ। अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वल्लाहु गफूरुन हलीम अल्लाह गफूर है। ये सब्जेक्ट है और ये इसकी प्रेडिकेट है, खबर है। अल्लाह गफूर है, अल्लाह बुरदबार है। रब ने कुरान शरीफ में एक और जगह फरमाया है फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून।
इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें पता न हो। यहाँ रब हमें ताकीद करता है कि अगर आपको इल्म नहीं है तो इल्म वालों से पूछा करो। मगर इस आयत में रब फरमाते हैं ला तसअलू अन अशिया। गोया ऐसा लगता है कि यहाँ रब ने रोक लगा दी है ला यानी सवालात को, गैर ज़रूरी सवालात को। ये कैसा सवाल है कि मैं अपने नबी से पूछूं कि मेरा बाप कौन है? ये कैसा सवाल है कि मैं अपने नबी से पूछूं मेरा हाल क्या होगा? गोया कि ये गैर ज़रूरी सवालात हैं। इन गैर ज़रूरी सवालात से परहेज़ करना है, हमें बचना है। रब ने इसी बारे में फरमाया है ला तसअलू अन अशिया। सवाल मत करो उन चीज़ों के मुतलिक इन तुबदा लकुम, अगर वो तुम्हें बताई जाए तो तुम्हें नागवार हो जाएगा। एक और हदीस में बयान हुआ है कि एक आदमी का इस्लाम पर रहना कायम रहना खूबी के साथ इस्लाम पर कायम रहना उसके लिए इतना काफ़ी है कि वो ला यानी सवालात से परहेज करे। ला यानी सवालात से परहेज करे। जो शख्स ला यानी सवालात से परहेज करता है वही हुस्न इस्लाम पर है। इसके बाद दूसरी आयत में रब फरमाते हैं कद सअलहा कौमुन मिन कब्लिकुम। सअला पूछा, फेल है, फेल माजी है। कौमुन इसका फाइल है। कौम ने पूछा, हा अशिया के मुतलिक है। इससे पहले अशिया के साथ अन आया है, अन अशिया। गोया कि इस तरह ये होना चाहिए कद सअला अनहा कौमुन। मगर अन यहाँ रब ने नहीं हज़फ किया है और जो हा अकेला नहीं रह सकता है ये वर्ब के साथ मिल सकता है। इस तरह रब ने यहाँ अन को महजूफ किया है। कद सअलहा कौमुन डायरेक्ट इसको हा को मफूल बनाया है।
قوم نے پوچھا ہے ان اشیاء کے بارے میں من قبلکم تم سے پہلے، جار مجرور متعلق فعل، قوم مضاف الیہ، تم سے پہلے بھی قوموں نے ایسے لا یعنی سوالات کیے، ثم اصبحوا پھر انہوں نے صبح کی، اصبحوا واو جو ہے اسم اصبح ہے، کافرین جو ہے اسم خبر اصبح ہے، ثم اصبحوا انہوں نے صبح کی، بہا کافرین اور وہ مکر گئے تھے، انکار کر بیٹھے، کافر ہو گئے، کفر کی حالت میں انہوں نے صبح کی، گویا کہ وہ غیر ضروری سوالات پوچھنے پر جب ان کے جوابات آ گئے تو وہ ان کے حق میں نہیں تھے، اس وجہ سے ان پر جو مزید احکامات کا بوجھ پڑا اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے، انہوں نے ان احکامات پر پھر عمل نہ کر کے کفر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو لا یعنی سوالات، لا یعنی کاموں سے بچائے، غیر ضروری کاموں سے، غیر ضروری حرکتوں سے، غیر ضروری افعال سے، غیر ضروری باتوں سے اللہ میں بچائے اور توفیق دے کہ ان آیات پر ہم اٹھتے بیٹھتے عمل کرتے رہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔